Hello friends, good afternoon and welcome to EduSat Live Lectures. Dear friends, today we are going to talk about organic farming for sustainable agriculture. To discuss this topic, we have with us our subject expert, Dr. Riti Thapar Kapoor. Dr. Thapar Kapoor is Assistant Professor in Amity Institute of Biotechnology in Amity University. Without further ado, I would like to welcome ma'am for this lecture, and I will ask her to start the lecture. Welcome ma'am. Thank you. Now today we will discuss organic farming for sustainable agriculture. This topic is very important. As we know, agriculture is the backbone of our country, and more than 68% people are directly or indirectly are involved in agriculture related activities. Agriculture accounts for 1/3 of the nation's GDP, that is gross domestic product. GDP is actually the indicator of condition of economy of our country, especially the agriculture economy. These two terms, that is agriculture and food security, these are linked with each other. Agriculture plays a very significant role in Indian economy. Here the graph is showing that in 1927 there was world population was 2 billion, and it is prediction that by the year 2048 population will continuously grow and it will reach up to 9 billion. So population growth, anthropogenic activities, industrialization, urbanization and excessive use of pesticides, chemicals, fertilizers for increasing crop yield are continuously dumping huge amount of waste and contaminating our environment. जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, ज़्यादा खाने के लिए, ज़्यादा उत्पादन के लिए हमारे किसान फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं. ये सब कहीं ना कहीं वेस्ट बढ़ा रहा है एनवायरनमेंट में और हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी इंक्रीज कर रहा है. The story begins with the failure of monsoon in 1966, which made the people think that a famine may head ahead. In US, there were two foundations, Ford and Rockefeller, could find out the solution, the high yielding varieties of crops. And the term, actually these two organizations introduced the term Green Revolution in 1966. So high yielding varieties soon spread all over the Asia, and initially the yield were exceptionally very high, but after some time the soil fertility began to decline due to continuous use of chemical fertilizers. पहले तो कुछ दिनों तक ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की, हमें ज़्यादा खाना चाहिए, हमें फर्टिलाइज़र्स डालने होंगे, कुछ दिनों तक तो प्रोडक्शन बढ़ा, हमने देखा, लेकिन धीरे धीरे कंसंट्रेशन इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का सॉइल में बढ़ता गया, जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है. मॉडर्न एग्रीकल्चर लार्जली डिपेंड्स ऑन द फॉसिल फ्यूल बेस्ड इनपुट्स सच एज पेस्टिसाइड्स, herbicides, synthetic fertilizers, which leads to the loss of soil fertility. और आज अगर हम आज की कृषि को देखते हैं तो हम जानते हैं कि आज हम बहुत हद तक कहीं पर जाकर के फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंट हो गया हमारी एग्रीकल्चर, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे घटती जा रही है. In fact, about 60% of agricultural land currently under cultivation suffer from indiscriminate use of chemical fertilizers. With intensive use of such pesticides, farmer can harvest 3 crops in a year, but adverse impact may lead to loss of soil fertility, and also it is harmful for the soil microbes, flora and fauna. Tropical soils are deficient in all necessary plant nutrients, and large amount of nutrients present in domestic waste and agricultural byproducts are also wasted. हमारे बहुत सारे
घर से निकलने वाला कचरा है, किचन से निकलने वाला वेस्ट है, जिसे कहीं ना कहीं यूज़ किया जा सकता है अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को सोचें और हम इस एनवायरनमेंट में फेंके जाने वाले पोल्यूशन से, प्रदूषण से भी बच सकते हैं। ये बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे फार्मर्स आज यूज़ कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं। फार्मर्स को हमारे ठीक कंसंट्रेशन भी नहीं पता है, लेकिन हाँ कंपनीज़ उन्हें ये ऐसे प्रोडक्ट सेल करती हैं कि हाँ वो इनके स्प्रे करने से या ऐसे सीड्स को डालने से, ऐसे खादों को डालने से वो अपने खेत की प्रोडक्टिविटी या क्रॉप प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो 1-2 साल फ़ायदा लगता है, लेकिन बाद में ये सारे जो फर्टिलाइज़र हैं, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र सॉइल की को बिल्कुल बैरन कर देते हैं या बंजर भूमि बना देते हैं। अगर हम कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड देखें, सो इन 1995 it was higher, it was very high, but in the year 2000 it was reduced, but again farmers are continuously using the synthetic pesticides. If we see the pesticide cycle, so we again find, अगर हम पेस्टिसाइड्स हमारे स्प्रे करते हैं फार्मर, कुछ पार्ट सॉइल में एब्जॉर्ब होता है और वहीं से हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है, वाटर टेबल को पॉल्यूट करता है, एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है, कुछ वेपोराइजेशन से फिर से एनवायरनमेंट में चला जाता है, थ्रू रेन अगेन इट कम्स इन द ग्राउंड, और ये एक पूरी साइकिल चलती रहती है। तो इस तरह से हम पेस्टिसाइड से किसी तरह से बच नहीं पाते और कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन, फूड वेब में पेस्टिसाइड एंटर करते हैं और पूरी हर तरह से, यानी प्लांट्स को, माइक्रोब्स को, एनिमल्स को, इवन टू द ह्यूमन बींग्स इट एडवर्सली अफेक्ट्स। If we see the impact of pesticides on human health, then we can find there are 3 categories of such type of poisoning, like mild, moderate and severe. Mild means symptoms, human beings can develop the symptom like nose, throat, eyes irritation, headache and dizziness, loss of appetite, nausea, diarrhea, sweating, weakness, nervousness, change in mood, etc. So these are the common symptoms, and generally people cannot recognize that these symptoms are due to the impact of the pesticides. If we talk about the moderate poisoning, then again vomiting, coughing, then feeling of constriction in the throat, chest, rapid pulse, muscular incoordination and confusion can also be created by the use of the pesticides. If we talk about the severe poisoning, then we can find that there can be the inability to breathe, then chemical burning on the skin, increased rate of breathing, then uncontrollable muscular motion, then even death can cause, and several new diseases like dementia and Alzheimer's, these are continuously coming. These are all due to the use of the पेस्टिसाइड्स। कैंसर, हर घर में हमें आज एक कैंसर पेशेंट मिल सकता है, एल्जाइमर, डिमेंशिया, और इसमें केवल ऐसा नहीं कि बहुत बड़े लोगों को ये सारी डिजीज़ हो रही हैं, या हम पहले कह देते थे कि मेमोरी लॉस है, ये ओल्ड एज पीपल की डिजीज़ है, एल्जाइमर है, लेकिन आज ये हम देखते हैं कि ये बूढ़े लोगों की नहीं डिजीज़, लेकिन बच्चों में भी ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं जिन्हें कि डिमेंशिया, या हम एक तरह से कन्फ्यूजन है, या मेंटल प्रॉब्लम, ये सब कह सकते हैं, और ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इवन कैंसर है, हर घर में कैंसर पेशेंट मिल सकता है। इट इज ऑल ड्यू टू द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द पेस्टिसाइड्स। If we talk about the management of solid waste, so there are 3R concept, that is reduce, reuse and recycle comes. So it is estimated that in urban as well as in rural areas of India, approximately 700 million tons biodegradable waste are generated, which is either burned or landfilled. हम अभी अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ सॉलिड वेस्ट जो हमारे घर से निकल रहा है। एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी है, जैसे कि पॉलीथीन है, जिसे जो कि डिग्रेड नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा किचन वेस्ट हो गया, जो एक तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट की सीरीज में आता है, और इसे हम क्या करते हैं, या तो इधर उधर फेंक देते हैं, या कोई गड्ढा बना के उसमें डाल देते हैं, या फिर हम इसे बर्न करते हैं, which ultimately pollutes our environment.
तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? द अनकंट्रोल्ड डंपिंग ऑफ वेस्ट कॉजेज वाटर, एयर, सॉइल पोल्यूशन. There is an increasing awareness for alternative agriculture system, and this type of system should integrate traditional practices with moderate techniques of life sciences. आज हम अवेयर हैं कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो हमें फिर से एक बार, हम मॉडर्न आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत नए नए केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमें फिर से कुछ अपने ट्रेडिशनल वे ऑफ जो एग्रीकल्चर था उसको भी देखना होगा. नाउ अ डेज फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया are switching over to sustainable agriculture in field and horticultural crops by adopting organic farming techniques. तो आज फिर से हमारा फार्मर ये सोच रहा है कि फिर से हम पुरानी पद्धति से कुछ करें, जिससे कि हम कम से कम जो सॉइल में होने वाला पोल्यूशन है या और हमारी फूड चेन से जो पोल्यूशन आ रहा है उससे हम बच सकेंगे. हम बात अगर करें ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक इन फॉर्म ऑफ वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन लीफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, वी कैन चेंज द क्रॉप, then biological management, animal husbandry, biofertilizers and manures. These are all forms of organic agriculture, so we can adopt. Excuse me. Now, organic farming system in India is not new. It is very old system and is being followed from ancient time. ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनानी है. ये बहुत पुरानी पद्धति है जो पुराने समय से हमारे फार्मर्स इसे यूज़ करते आ रहे हैं. It is a method of farming system which primarily aimed at cultivating the land and raising crops in such a way as to keep the soil alive and good health. It can be done by use of the organic waste, maybe the farm waste, crop waste, animal waste, and other biological materials, along with the beneficial microorganisms that are known as biofertilizer, to release the nutrients to the crops for increased sustainable production in a eco-friendly, pollution free environment. हम बात अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की करते हैं तो इसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट ले सकते हैं, जो हमारे घरों से निकलने वाला कचरा है या एनिमल वेस्ट है, प्लांट डेब्रिस है, प्लांट स्टेम है, हमें खेतों से मिल जाएगा. हम उसका क्या करें, हम उसे जलाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम उसे खाद में बदल दें, फर्टिलाइज़र बना लें. एज पर द डेफिनेशन ऑफ United States Department of Agriculture USDA, organic farming is a system which avoids or excludes the use of synthetic inputs and to the maximum extent rely upon crop rotation, crop residues, animal manure, off-farm organic waste, biological system of nutrient mobilization and plant protection. And FAO also suggested that organic agriculture is a unique production management system which promotes and enhances the health of the soil. It maintains the biodiversity, biological cycles, soil biological activity by using the farm agronomic, biological and mechanical methods in exclusion of all synthetic off-farm inputs. अगर हम किसी भी सिस्टम की, हम बाहरी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात माने, उनके कॉन्सेप्ट माने, तो वहाँ पर भी यही कहा गया है, ऑर्गेनिक farming avoids the use of synthetic chemicals, synthetic pesticides, and we can use the organic waste, which are the household waste, which are degradable. So it is a kind of a mode of a eco-friendly, we can say, mode of the farming, which is organic farming, which is free from pollution. Now, if we see again this chart, then we found that countries with the most organic agricultural land, data of 2013. So, here we see all the developed nations are using organic farming, and this is the total agricultural land, millions of hectares, like in Australia, very high, Argentina, then USA, China, Spain, Italy, Germany, France, Canada. So, all these countries are using the organic farming. Here if we see in India,
So, Madhya Pradesh, in Himachal Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Uttar Pradesh and Uttarakhand, they are raising several crops like cotton, oil seeds, cereals, and some vegetables, medicinal plants, especially in the Uttarakhand area. So, they are also now using the organic farming. These can be said the organic states, but now लेकिन आज भी जो है ये कम है. This area under organic cultivation is few. Again we find the world's largest market for organic products. अगर हम organic products की बात करें, it is again the data of the 2013, then we find more products, more organic products are available with the US, Germany, France, China, Canada, UK, Italy, Switzerland, Sweden, Japan, Spain and Australia. They use such type of products. They cultivate the organic plants from the organic farming and utilizes such type of products. These products are available in their markets. So, current status of organic products in India. Emerging from 42,000 hectare under certified organic farming during year 2003 and 4, the organic agriculture has grown almost 29-fold during the last 5 years. And by the March 2010, India has brought more than 5 million hectare area under organic certification process. अभी हम अगर बात करें तो ऑर्गेनिक जो कल्टीवेशन एरिया था हमारी कंट्री में पहले से बड़ा है और कुछ 5 सालों में तो अधिक बड़ा है, लेकिन फिर भी जितना एरिया इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे होना चाहिए अभी भी वो एरिया नहीं है. एंड ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 675 crore, which was in year 2010, to 7,000 crore by 2016. ये गोल है जिसमें कि 60% का इंक्रीज भी ग्रोथ रेट में होना चाहिए, लेकिन ये अभी हमें अचीव करना है. So, changing lifestyle of today's consumer, rising health awareness, higher disposable income, and increasing number of modern retail outlets across the country are the major growth drivers of the organic food segment. 70 organic products were available in year 2004, but now more than 300 organic products are available in market in our country, and these products are still growing. पहले जहाँ हम 10 साल पहले बात करें तो केवल 50-60 से 70 तक प्रोडक्ट हमें मार्केट में मिलते थे, लेकिन आज ये नंबर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है और ये अब 300 से तो ये आंकड़ा पार हो चुका है. क्यों? क्योंकि लोगों की डिमांड है. लोगों में अब ये हो गया है कि उन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेने एक अवेयरनेस है कि जो और ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं दीज आर फ्री फ्रॉम द पेस्टिसाइड्स हैं, सेफ हैं, नॉन टॉक्सिक हैं, इसे हमें कंज्यूम करना चाहिए, हम डिजीज़ को रोक सकते हैं. तो इसलिए इसकी डिमांड आजकल बढ़ रही है. ऑल मेजर हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट्स, हमें जो घर के पास मॉल हैं, ये जो चेन्स हैं जैसे स्पेंसर्स है, फैब इंडिया है, हाइपर सिटी, नेचर्स बास्केट, नामधारी फ्रेश, नीलगिरी, ऑल दीज हैव अ डेडिकेटेड शेल्फ फॉर ऑर्गेनिक फूड. अब ये सब भी एक शेल्फ रख रहे हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिक फूड है, उस पर बाकायदा ये एक लेबल होता है कि हाँ ये अलग है, भले उसका प्राइस कुछ ज़्यादा हो, कोशिश ये की जाती है कंपटीशन के लिए वो सेम प्राइस में मिले या कम प्राइस में मिले. इस तरह से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है. दीज मॉडर्न रिटेल स्टोर्स आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग शेल्फ स्पेस फॉर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स. इफ़ वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर हम आज ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सिस्टम. ये इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक इंटीग्रेटेड फार्मिंग, यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, crop rotation, integrated weed management, then integrated disease management and as well as pest management. तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कुछ अलग नहीं है, कोई नया नहीं है, लेकिन हम इसे ऑर्गेनिक वे में मतलब एक बिना पेस्टिसाइड का यूज़ करते हुए भी जो हमारे नेचर में माइक्रोब्स हैं या जो दूसरे प्लांट है उनसे भी हम इनको, या जो एनिमल्स अवेलेबल हैं उनसे हम इसे कर सकते हैं अपनी फील्ड में. और अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को लें, सो देयर आर मेनी फीचर्स लाइक एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, मैनेजमेंट ऑफ टेम्परेचर, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड रेन वाटर, हार्वेस्टिंग ऑफ sun energy,
self-reliance in inputs, maintenance of life forms, integration of animals and use of renewable energy. तो सॉइल हमारी से ठीक रहती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ड्यू टू ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इट इंक्रीजेज, हार्वेस्टिंग ऑफ सनलाइट, देन मेंटेनेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हमें इस तरह के सॉइल में माइक्रोब्स मिल सकते हैं क्योंकि उसमें कोई सिंथेटिक पेस्टिसाइड नहीं है, हर्बिसाइड्स नहीं है, और हम जिससे इसका सॉइल का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, वाटर कंजर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हर तरह से ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेनिफिशियल है। If we talk about the organic management and integrated approach, then we find there are several modes, बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को आगे कर सकते हैं, लाइक ऋषि कृषि, पंचगव्य कृषि, देन नेचुरल फार्मिंग, होमा फार्मिंग, EM टेक्नोलॉजी एंड वर्मी कंपोस्टिंग। ये सारी तरीके हैं, हमें पता है, हमारे ऋषियों ने शुरू से इन मेथड्स को दिया है, आज फिर से साइंस इन्हीं को करने की बात कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ऋषि कृषि, ऋषि कृषि मेथड ऑफ नेचुरल फार्मिंग हैज बीन यूज्ड बाय farmers of Maharashtra and Madhya Pradesh. In this method, all farm sources of nutrients including compost, cattle dung, green leaf manure and crop biomass are used for soil enrichment through the use of the special type of formulation which is known as Amrit Pani. तो इस तरह से ऋषि कृषि मेथड, पहले शायद हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की कृषि की होगी और तो उन्हीं के नाम पे से ऋषि कृषि कह दिया गया, उन्होंने ही प्रपोज किया ये मेथड। लेकिन इसमें हम एक स्पेशल टाइप का फॉर्मुलेशन बनाते हैं जिसे हम अमृत पानी कहते हैं। अमृत पानी मीन्स बहुत यूज़फुल है वो, और उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। सबसे पहली बात है कंपोस्ट है, ग्रीन लीफ मैन्योर है, खाद है, कुछ भी ऐसा सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 15 kg ऑफ सॉइल अगर हम ले लें, राइजोफेरिक सॉइल जो हम रूट से लेते हैं, कलेक्टेड फ्रॉम द रूट्स ऑफ द बनियान ट्री, बरगद से लेकर के, इट स्प्रेड ओवर 1 acre ऑफ द लैंड एंड सॉइल इज एनरिच्ड विद 200 लीटर्स ऑफ अमृत पानी। अगर हम इस तरह से ये फॉर्मुलेशन यहाँ पे ये तैयार करते हैं राइजोफेरिक सॉइल ले करके, तो ये हमारी बंजर लैंड को फिर से रिवाइव कर देता है। और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसे केवल साधारण कुछ मेथड अपना करके फिर से जीवित किया जा सकता है। सो अमृत पानी इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ घी, काउ डंग एंड हनी एंड डाइल्यूटेड विद वाटर। और ये अलग अलग फॉर्मुलेशन है, कैन बी यूज फॉर द सीड ट्रीटमेंट, फोलियर स्प्रे, एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल, जिसे हम लोग हिंदी में बीज संस्कार, भूमि संस्कार, पादप संस्कार कहते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम सीजन देख करके ये डिसाइड किया जाता है कि हमें कब सोइंग करनी है, कौन सा सीजन है हमारा। तो उसमें हम इस तरह के ये स्प्रे तैयार करके, ये घर में भी जो हमें घी अवेलेबल है, हनी अवेलेबल है, और इसमें कोई भी ऐसा सिंथेटिक सब्सटेंस नहीं, वाटर है, काउ डंग है, इसको ले करके हम बहुत ही आसानी के साथ ये फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। प्लांट्स को इसमें हम को ये स्प्रे करते रहते हैं, सीड्स की सोइंग से पहले उसका ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि हमारे पौधों में डिजीज़ नहीं होती, हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी मिलती है। दिस सिस्टम हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। और बहुत सारे चीज़ों पर इसे देखा गया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। नाउ पंचगव्य कृषि, अगर हम पंचगव्य कृषि की बात करते हैं, पंचगव्य इज अ स्पेशल बायो एनहांसर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 5 प्रोडक्ट्स लाइक काउ डंग है, यूरिन है, काउ यूरिन से मिल्क है, कर्ड है, घी, ये सारे हमें काउ से एनिमल प्रोडक्ट हैं, ये हम ले सकते हैं। इट एक्ट्स एज बायो एनहांसर की तरह ये रोल प्ले करता है। और डॉक्टर नटराजन, हु इज़ द साइंटिस्ट फ्रॉम तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ही derived or refined the formulation which is suitable to the requirement of different agricultural crops. हर के लिए ये अलग अलग अमाउंट है कि किसी प्लांट को हमें कितना देना है, कितने अमाउंट में फॉर्मुलेशन देना है। द फॉर्मुलेशन acts as tonic to enrich the soil, induces crop plant vigor with quality production, as it contains all type of macro micronutrients and growth hormones which are required
फॉर द प्लांट ग्रोथ। ये जो इनका जो मिक्सचर होता है उसमें हर तरह के जैसे मिल्क है, मिल्क में सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कर्ड है उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, काउ डंक is also a very good source, cow urine we can use as a medicine, इन सब को ले करके घी है उसमें फैटी एसिड्स हैं। तो ये सारे जो हार्मोन्स हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये फॉर्मुलेशन को अलग अलग इसका बनाने का तरीका है, लेकिन मेन इसके कंपोनेंट यही है। सो ही हैज़ ऑलरेडी प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ formulation and can be used by the farmers on a large scale for good crop production. इसमें अगर हम स्ट्रेंथ देखें, अगर ये भी एनालिसिस हुई है, देयर आर मेनी माइक्रोब्स लाइक फंजी, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, एनारोब्स, एसिड फॉर्मर्स, मिथेनोजेंस, these are all present in such type of formulation which are beneficial for the soil and plant growth. Presence of fermentive microorganisms such as yeast, lactobacillus helps in improvement of the soil biological activity and promote the growth of the microorganism. For foliar spray, 3 to 4% of the Panchgavya solution is quite effective and 4 to 5 sprays ensure optimum growth and productivity. अगर हम ये prepare कर लेते हैं foliar spray, so only 4 to 5 sprays can ensure the good crop production and plant growth. उससे ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें कुछ भी। और ये एक आम किसान भी आराम से ऐसा चीज़ों को इकट्ठा करके उसके पास एनिमल भी हैं, उसे आसानी से काऊ यूरिन, काऊ डंग, घी, सारे ये काऊ प्रोडक्ट्स हैं, मिल सकता है अपने जानवर के साथ ही ये इसका फॉर्मुलेशन करके और बड़े पैमाने पर अपने खेत पे छिड़क सकता है और अच्छी ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ को उसे मिल सकती है। तो इस तरह से ये सारी ऑल जो टेक्निक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दीज आर ऑल ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग। पहले जब हमारी साइंस बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी तो हमने ये जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल, लैब में हमारे इतना प्रोडक्शन नहीं होता था, इतनी पेस्टिसाइड कंपनीज नहीं थी, जिससे कि ये जो हम एक तरह से पूरी तरह से अपनी फार्मिंग सिस्टम के लिए वी वर डिपेंडेंट ऑन द नेचर विच वॉज वेरी गुड फॉर द सॉइल हेल्थ। दिस वॉज द इको फ्रेंडली type of a farming. Now application of Panchgavya has been found to be very effective in many horticultural crops such as mango, guava. तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ एक्चुअली अ नेचुरल टाइप ऑफ फार्मिंग। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे खेत ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारे खेत उतना अनाज नहीं पैदा कर रहे हैं जितने की आज हमें आवश्यकता है, और हम सिंथेटिक पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, हमारे फार्मर यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब से हमें बचना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर प्रकार की डिजीज़ को पैदा करें। जितनी नई नई बीमारियां हैं, ये हमारी फूड चेन, फूड वेब में एक तरह से आ रही हैं पेस्टिसाइड्स के कारण, सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स के कारण। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर जाना है, जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग है, जो हमारे एनिमल्स, माइक्रोब्स, प्लांट्स से हमें मिलता है, और हमें इसी की ओर, इसके बारे में सोचना है।
welcome viewers. Now today we talk about the natural farming, which is a type of organic farming. If we talk about natural farming, it means it is natural without the use of the synthetic chemicals. Natural farming emphasizes on efficient use of on-farm biological resources and enrichment of soil with the use of Jivamruta to ensure high soil biological activity and Bijamruta for seed and planting material treatment. So, Jivamruta is for the soil treatment, we can say, and Bijamruta, that is for the treatment of the plant material and seeds. Again, Biocenter Bengaluru has developed such type of formulation of Jivamruta which contains the microbes such as the Azospirillum, phosphate solubilizing microbes, Pseudomonas, Trichoderma, which is a type of fungus, yeast and other fungus also, molds. 200 liters of Jivamruta is needed for one application in 1 acre. अगर हम इस तरह का मिक्सचर बनाते हैं जिसमें सारे माइक्रोब्स हैं तो इसका अगर हम 200 लीटर लगभग 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त है. If we talk about the Homa farming, again it is the origin, this word is origin from the Vedas and is based on the principle that if you will heal the atmosphere, the healed atmosphere will heal you. So, during Agnihotra, dried cow dung, ghee and brown rice are burned in an inverted pyramid shaped copper vessel along with the special mantras. It is widely believed that through the burning of the organic substances in this particular pyramid shaped copper vessel, it produces some energy which is very useful. तो अगर हम ये सारे का मिक्सचर ले लें इससे हमें एक तरह की ऐश मिलेगी और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी ये बहुत यूजफुल होगी. It is recommended to prepare a mixture of cow urine and water 50:50 to which up to 4 tablespoons of Agnihotra ash पर 5 लीटर ऑफ सोल्यूशन आर मिक्स्ड. इसमें हम ये भी नेचुरल हमने चीज़ें ली, अपने नेचर से ली. इसमें हमने काउ यूरिन और वाटर का इक्वल मिक्सचर लिया और उसमें जो हमने अभी जो प्रोड्यूस हुई ऐश ड्यू टू दिस पर्टिकुलर बर्निंग ऑफ द सब्सटेंसेस इन कॉपर वेसल, उसमें 4 टेबल स्पून 4 चम्मच ये ऐश ले ली. 5 लीटर वाटर में से इसका सोल्यूशन बना लिया. वी कैन स्प्रे ऑन द सीड्स एंड बल्ब्स for 30 to 40 minutes before the sowing in the plantlet. So, this provides strength the germinating plants and makes it more resistant to the pest. Plant nutrient solution, to make an Agnihotra plant nutrient solution up to 4 tablespoons of ash, 4 tablespoons of dried cow dung should be mixed in 5 liter of water. This particular formulation acts as growth enhancer or plant nutrient solution. EM टेक्नोलॉजी की बात करें, EM इज इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कंसोर्शियम. एक ग्रुप है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर है, लाइक नाइट्रोजन फिक्सर्स, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर्स, फोटोसिंथेटिक माइक्रोब्स, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ईस्ट है, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइसिटीज हैं. ये अलग अलग माइक्रोब्स होते हैं जो इस पूरे ये ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सब प्रेजेंट होते हैं, कंसोर्शियम होता है. इसको भी हम ले करके हमारे साइंटिस्ट इसका एक विशेष बताते हैं कि इसमें कितनी अमाउंट में स्पेसिफिक फंगस या ये पर्टिकुलर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होना चाहिए. एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द क्रॉप ग्रोथ एज इट इम्प्रूव्स द सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग लेंथ, growth of plants, flowering, fruiting, ripening of the grains and fruits, improves photosynthetic potential, and increases tolerance of plants against pest attack, improves physicochemical and biological properties of the soil, help in control of soil-borne pathogens, help in quick degradation of organic matter. It saves a lot of time and space which is required for compost preparation and improves soil biota and makes soil soft and porous with more water रिटेंशन कैपेसिटी. अगर हम इस तरह के बना लेते हैं ये बेनिफिशियल एक कंसोर्शियम, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर सॉइल और ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है. ये हमारा टाइम बचाता है, हमारे मनी सेव करता है और हम इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं. और एप्लीकेशन लैंड पर भी करा जा सकता है, सीड ट्रीटमेंट पर भी. डाइल्यूट दिस 5 to 10 लीटर्स ऑफ EM सोल्यूशन इन
50 to 100 लीटर्स ऑफ वाटर, इसे हम स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे सीड को फॉर वी कैन सोक फॉर 5 to 6 hours in 1:100 fold diluted EM solution, and we can done use for sowing also. But now we come for the वर्मी टेक्नोलॉजी। अगर हम वर्मी टेक्नोलॉजी की बात करें, this concept is very old. And Darwin in 1881 gave first time he explained the role of earthworms in maintenance of soil fertility. It is a biotechnique which can convert organic waste into the valuable compost. So, these acts as natural bioreactor earthworms, and which can convert the organic waste into the important fertilizers and can produce a black gold. So, these are the Icenia fotida, that is the common earthworm. If we see the anatomy, so we can find the earthworm has a long rounded body with a pointed head and slightly flattened posterior. Rings that surround the moist soft body allows the earthworm to turn and twist. Then earthworm has no true legs. It has bristles on the body, move back and forth and allowing earthworm to crawl. Earthworm breathes through the skin and they are hermaphrodites also. Food is indigested through the mouth into the stomach, then passes through gizzard, where it is ground up, and after passing through the intestine, for the digestion, what's left is eliminated, which is the fertilizer. अगर हम टाइप्स देखें, बोरोइंग अर्थवर्म, नॉन बोरोइंग है। बोरोइंग अर्थवर्म है, फेरिटिमा है, जिसमें कि दे टेक 90% ऑफ द सॉइल एंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, लेकिन ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए कौन से हैं? नॉन बोरोइंग है, बिकॉज आइसिनिया है, बिकॉज दे टेक ईट 10% of the soil and 90% of the organic waste, and can form vermicompost, can produce after the digestion. So, we can use non-burrowing type of earthworms for household purposes. So, vermi technology is derived from Latin term, that is vermis means worm. The breeding and propagation of earthworm and the use of the castings become very important tool for waste recycling. It is eco-friendly technology. It can be conducted round the year, providing environmental conditions remain within acceptable limits. अगर हम बात करें, हम इसे साल भर कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं, अपने किचन गार्डन में कर सकते हैं, और इसे आसानी के साथ एक ले पर्सन भी, जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा फार्मर है, वो भी कर सकता है। कोई इसमें हाई फाई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए, ना कोई हाई फाई ऐसी टेक्नोलॉजी है। वर्मी टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस 3 मेन प्रोसेसेस: वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कन्वर्शन। वर्मी कल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ द अर्थवर्म्स, अर्थवर्म को पालना, एक तरह से इकट्ठा करना और एक ज़्यादा बड़ी संख्या उनकी बना लेनी है। Earthworms are commonly known as biological indicators of soil fertility and play a vital role in maintaining soil quality and managing efficient nutrient cycling. अगर हम कहाँ हम करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्म bin can be made from wood, plastic, recycled containers, trunk and old bath tubs को भी ले सकते हैं। वुडन बिन्स ज़्यादा अच्छे हैं, they have advantages that they are more absorbent and can provide better insulation. Redwood और aromatic wood should be avoided, क्योंकि इसमें अलग से aroma होगी, it can kill the worms. Plastic containers tends to keep the compost too moist. Plastic container भी avoid करना चाहिए. Container should be well cleaned and never stored with the other chemicals in earlier. Drainage holes in the bottom should be made, and the sides of the bin will ensure the water drainage and proper air circulation can take place. Place the bin on the bricks and wooden blocks in a tray to catch excess of water that drains from the bin, and compost can be used as a liquid fertilizer around the home landscape. इससे जो हमें वर्मी वॉश भी मिलता है बिन से, जो बाद में हम उसे भी कलेक्ट कर सकते हैं, जो लिक्विड छन के आता है उसे भी हम स्प्रेइंग के लिए यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स पे। ये बिन्स हैं, अलग अलग तरह के बिन्स हैं। बिन्स फॉर वर्मी कंपोस्टिंग मार्केट में से लकड़ी के भी बने बनाए मिलते हैं। कुछ नहीं हमारे पास कोई इस तरह का संदूक ही है लोहे का, उसको भी हम जा कर के यूज़ कर सकते हैं।
Vermicomposting or composting with earthworms is excellent technique in which consumption of organic material or food waste by earthworm takes place and provides the rich end product, which is rich in nutrients. It contains worms at various stages of development and other microbes associated with composting processing. Nutrients in vermicompost are often much higher than the traditional garden compost. अगर हम बात करें तो ये बहुत रिच होता है और एक तरह से कूड़े कचरे को अर्थवर्म एक फर्टिलाइजर में और ब्लैक गोल्ड जिसे हम कह सकते हैं उसमें बदल देता है डाइजेस्ट करके, तो हमें इसको आसानी से हर कोई अपना सकता है. लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, फर्स्ट इज we can say earthworm requires adequate temperature, moisture, dark and cool conditions for breeding. Optimum temperature is in between 55 to 77 degrees centigrade. To remain active during the winter, the system should be maintained at a temperature above 10 degrees centigrade. The worms should never be allowed to freeze. Portable bins can be kept near a hot water heater in a garage during the winter to keep them warm. फ्रीज नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इसे हर मौसम में चाहिए, मॉइस्चर होनी चाहिए, वाटर हमें ऐसे अगर हम जो हमने सिस्टम बना रखा है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उस पर प्रॉपर स्प्रेइंग होनी चाहिए. एक्सपोज फूड वेस्ट कैन अट्रैक्ट द फ्रूट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड अदर पेस्ट, सो बिन शुड बी कवर्ड विद मॉइस्ट गनी बैग्स टू अवॉइड पेस्ट. ऊपर से ढका होना चाहिए, हम किसी बोरे से भी ढक सकते हैं जिससे मक्खी ना आकर के बैठे या और पेस्ट ना आके बैठे जो कि हमारे अर्थवर्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं. द कंपोस्ट शुड बी केप्ट एट pH 6.5, ये स्लाइट एसिडिक रेंज में इसे आता है. इफ पॉसिबल विद द अपर एंड लोअर लिमिट्स एट 7 and 6 रिस्पेक्टिवली. बिन कंटेंट शुड बी केप्ट मॉइस्ट बट नॉट सोक्ड. बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए लेकिन उसमें नमी बराबर होनी चाहिए. अर्थवर्म्स हैव एन एवर्शन टू ब्राइट लाइट. अ वर्म ब्रीथ्स व्हेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और वाटर पासेस थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इनटू द ब्लड कैपिलरीज. इफ द बॉडी कवरिंग ड्राइज अप द वर्म सफोकेट्स. तो एक ह्यूमिडिटी मेंटेन रखनी है, उसका एक लेवल हमें मेंटेन रखना है, पीएच मेंटेन रखना है. डूबा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर मॉइस्चर भी होनी चाहिए और ब्राइट लाइट नहीं पड़नी चाहिए. जहाँ पर हमने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो भी सेटअप लगाया हुआ है उस पर, क्योंकि लाइट से अर्थवर्म भागते हैं, दूर भागते हैं, जिससे कि हमें अच्छी खाद नहीं मिल सकेगी. बहुत सारे एग्रो वेस्ट जो हमारे घर से निकलते हैं, हमारे खेतों से निकलते हैं, वी कैन यूटिलाइज सच एज ड्राई लीव्स ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रीज, स्ट्रॉ ऑफ राइस एंड sorghum, pigeon pea stalk, groundnut husk, vegetable waste, soybean residues, fiber from coconut trees, food industry waste, biogas sludge, कैटल मैन्योर और शुगर केन फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट निकल रहे हैं, इन सबको पीछे कुछ दिनों पहले की न्यूज़ है कि पंजाब में बहुत सारा जो किसानों ने जलाया, गेहूं की और चावल का सब जलाया गया, जिससे कि जो वेस्ट मटेरियल था, स्ट्रॉ थे, उनसे बहुत सारा पोल्यूशन हुआ और इसे कोर्ट ने भी बैन किया. सो वी कैन यूटिलाइज ऑल दिस टाइप ऑफ किचन वेस्ट एंड एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स इन द वर्मी कंपोस्टिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर. वी कैन यूटिलाइज. हमारे कैंटीन से बहुत ज़्यादा वेस्ट निकलता है, हॉस्टल से निकलता है, हमारे घरों से निकलता है. इन सब का कोई प्रॉपर सोल्यूशन एज सच हमारे पास नहीं है. केवल यही सोल्यूशन है कि हम इसे वर्मी कंपोस्टिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं. ये सारे वेस्ट हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं. हाउस होल्ड वेस्ट हैं, फार्म से निकलने वाले वेस्ट हैं. प्रोसेस बहुत आसान है. कंपोस्टिंग कैन बी डन आइदर इन पिट्स, कंक्रीट टैंक पर कर सकते हैं. एंड इट इज़ प्रेफरेबल टू सिलेक्ट अ कंपोस्टिंग साइट अंडर द शेड. शेड में ये रखना चाहिए हमें सारा सेटअप, कुछ ऊंचाई पर, जिससे वाटर ना वहाँ पे रुके. वर्मी कंपोस्ट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड अबव द ग्राउंड बाई यूजिंग सीमेंट रिंग्स. सीमेंट के ऊपर एक रिंग्स पर भी हम रख सकते हैं. बेसल लेयर में वर्मी बेड कंप्राइजिंग ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स और पेबल्स, 3-4 सेंटीमीटर तक हम छोटे ईंटों के टुकड़े रख सकते हैं. उसके ऊपर अ कोर्स सैंड ऑफ टोटल थिकनेस ऑफ 1 to 2 इंच सैंड बिछा सकते हैं 1-2 इंच की. प्लेस 3-4 इंचेस थिक लेयर ऑफ स्ट्रॉ. उसके बाद स्ट्रॉ 3 से 4 इंच पर, और ये फिर उसके बाद 14 से 15 दिन का जो काउ डंग, जो ओल्ड काउ डंग होता है, उसको ले सकते हैं, उसकी थिक लेयर लगा सकते हैं और उसमें लगभग
1000 अर्थवर्म को डाल देना चाहिए। ऑल टाइप ऑफ एग्रो वेस्ट जो अभी दिखाए गए वो सब यूज़ किए जा सकते हैं। उनको 4 to 5 इंचेस लेयर बना के हम इन सब के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये काऊ डंग या जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है थोड़ा सा ड्राई होना चाहिए, उसमें ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। देन कवर द रिंग विद द गनी बैग्स, ऊपर से इसे बोरे से हम ढक सकते हैं टू प्रिवेंट द बर्ड्स फ्रॉम प्रिकिंग द अर्थवर्म्स। और इसकी एडिक्वेट मॉइस्चर 60% के करीब होनी चाहिए, 60 to 70% हो सकती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि फिर हमारा अर्थवर्म रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा। Then water is sprayed till the entire setup is moist but not wet, because less water kills the worm and too much water chases them away. बहुत ज़्यादा भी पानी नहीं, कम भी नहीं, इससे भी अर्थवर्म भाग सकते हैं। ये छोटा सा सेटअप है जो हमारे किसान किसी भी शेड में खेतों के किनारे भी बना सकते हैं और वहाँ से जो खाद तैयार होती है उसका यूज़ वो खेतों में कर सकते हैं। ये सिंपल मेथड है जो कि फूड वेस्ट का प्रोसेस है। ये 42 डेज में ये पूरा किया जा सकता है। आराम से अर्थवर्म को लेके कूड़े में डाल दिया जाए, पूरा सेटअप लगाया जाए, लास्ट में हमें जैसे चाय की पत्ती होती है इस तरह की दानेदार खाद मिलती है और कहाँ हमारा वेस्ट जाता है हमें पता नहीं चलता है। इस तरह से लगभग 3 महीने के बाद हमारा जो कूड़ा कचरा है 50 डेज के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, या और भी हम लंबे समय तक भी इसको रख सकते हैं। लेकिन हमें अगर जल्दी भी खाद चाहिए तो 2 से 2.5 महीने में आराम से हमें खाद मिल सकती है। When the compost is ready, do not spray water for 2 to 3 days to make the compost easy for shifting. जब हमें लग रहा है हमारी खाद तैयार हो गई है तो हमें वाटर स्प्रे बंद कर देना चाहिए जिससे मैन्योर ड्राई हो जाए। The culture in the bed contains different stages of earthworm. इस बेड में कुकून्स भी हो सकते हैं, जुवेनाइल्स भी हो सकते हैं, एडल्ट्स भी हो सकते हैं। ये डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए, हमें इन्हें कायदे से सेपरेट करना चाहिए। ट्रांसफ़र करके फिर से हम दूसरे कल्चर में, दूसरे शेड में जहाँ पे हमने ये सेटअप लगाया, वी कैन ट्रांसफर ऑल दीज जुवेनाइल्स एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ कुकून्स ऑफ अर्थवर्म इन द सेपरेट अलग सेटअप, or we can collect the vermi compost which has already been prepared. It is with the rich earthy smell और dark black in color, so known as the black gold, और इसे हम फिर पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ द कंपोस्ट एंड वर्म्स, अगर हम टोटल कचरा देखें तो कचरा बहुत ज़्यादा होता है और हमें बहुत कम मात्रा में वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो हम यानी बहुत सारी ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट वी कैन कन्वर्ट इनटू द दिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वर्मी कंपोस्ट। ये ब्राउन कलर का होता है। इसमें भी अर्थवर्म के सेपरेशन के कई मेथड है। लाइट से सेपरेट कर सकते हैं अगर हम, क्योंकि अर्थवर्म लाइट से इट हैज सेंसिटिविटी, तो लाइट डालेंगे अर्थवर्म अलग हो जाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट बन गया है लास्ट में जो तैयार है हम उसे अलग कर सकते हैं। साइडवे सेपरेशन इज द अनदर मेथड कि एक साइड कर लें प्रिपेयर्ड वर्मी कंपोस्ट को और फिर जिससे कि वर्मी वहाँ से जो हमारे अर्थवर्म है दूसरी ओर माइग्रेट कर जाते हैं। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट इट अलाउज द कैप्सूल्स टू हैच इन द मीन टाइम एंड मोस्ट विल मूव अक्रॉस। वर्टिकल सेपरेशन भी कर सकते हैं। अ नाइलॉन मेश स्क्रीन स्लाइटली लार्जर देन द सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर कैन बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वर्मी कंपोस्ट। एक छन्नी सी रख सकते हैं नाइलॉन के कपड़े की, जिससे कि नीचे की ओर जो है द वर्म्स विल माइग्रेट अप थ्रू द स्क्रीन इनटू द न्यू बेडिंग एज द फूड सोर्स बिलो इज डिप्लीटेड। जहाँ नीचे खाद बनती जा रही है, जब वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो है जिसे वो कंज्यूम करा था पर वो ख़त्म होता जाता है, तो स्क्रीन से ऊपर की ओर आ जाते हैं हमारे अर्थवर्म्स और नीचे हम जो वर्मी कंपोस्ट अलग करते जाते हैं, फिर ये ऊपर के बेड में आते जाते हैं। तो इस तरह से भी वर्टिकल सेपरेशन, लाइट सेपरेशन, साइडवे सेपरेशन, इन सब मेथड से भी आसानी से जो वर्मी कंपोस्ट है उससे वर्मी कल्चर अलग कर सकते हैं और कंपोस्ट अलग कर सकते हैं। अगर हम न्यूट्रिएंट कंपोजिशन की बात करें, सो ये दीज आर द वेस्ट मटेरियल और अर्थवर्म बट इट इज़ फर्टिलाइजर फॉर अस। इसमें म्यूकस बहुत होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट, फॉस्फेट, कैल्शियम, सॉल्युबल पोटेशियम, बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग रिटेंशन फॉर द न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ह्यूमिक सब्सटेंसेस हैं, इट इज़ ऑर्गेनिक है, नॉन बर्निंग है
और अगर हम देखें वर्मी कंपोस्ट कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 11 टाइम्स मोर पोटेशियम, 7 टाइम्स मोर phosphorus, 5 times nitrogen, 3 times more magnesium and 2 times more calcium in comparison to the artificial fertilizer, we can say synthetic fertilizer, which is prepared in our laboratories. It is estimated if the 1 million worms exist in 1 acre of the land, then the cast they produce in the area is approximately 500 kilogram per day per acre, that is approximately 200 tons per year. तो अगर हम 1 एकड़ लैंड में इतने ज़्यादा अगर हम वर्म्स को छोड़ देते हैं तो भी वो हमारी बैरन लैंड को फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर सकेंगे. बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक कार्बन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज जो सब चाहिए सॉइल को, वो सब बहुत अधिक उनका परसेंटेज है न्यूट्रिएंट्स का वर्मी कंपोस्ट में. सारी एनालिसिस है, हम लैब से भी जो हमारी तैयार हुई है वर्मी कंपोस्ट उसकी एनालिसिस करा सकते हैं. दीज आर ये सारे पैकेट्स बना करके बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो कि जैविक खाद के नाम पे इन्हें सेल कर रही हैं, अच्छे खासे उन्हें इसके दाम मिल रहे हैं पैकिंग करके. देन यूटिलाइजेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट की हम बात करें, हम साल भर इसे कर सकते हैं. ये एक्सीलेंट ग्रोथ एनहांसर है, सॉइल कंडीशनर वी कैन से, और वी कैन यूटिलाइज इट एट एनी स्टेज ऑफ क्रॉप. हम कहीं भी इसका वर्मी वॉश दे सकते हैं, और छोटे प्लांट हो बड़े हो, सीड ट्रीटमेंट देना हो, हम किसी भी प्लांट की स्टेज पर वी कैन यूटिलाइज इट. अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ वर्मी टेक्नोलॉजी, तो एक ये बहुत ब्रॉड एरिया हो जाएगा. यानी एक तो हम वेस्ट बायो मास मैनेजमेंट कर रहे हैं, पॉल्यूशन एबेटमेंट कर रहे हैं, देन वेस्ट लैंड कंजर्वेशन कर रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी है, और क्रॉप प्रोडक्शन भी, प्लांट प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं. तो सारी चीज़ें हम एक साथ कर ले रहे हैं. इससे एक तो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, लागत कम है, हमें जो इनपुट है कम है, आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है. हमारे फार्मर्स को बहुत कुछ लगाना नहीं है, जो गांव में उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो उनसे कर सकते हैं. जो जिन्हें वेस्ट कहकर फेंका जाता है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, दे कैन यूटिलाइज इट. और दूसरी बात ये है कि वर्मी टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑफर्स अ ग्रेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द unemployed women and youth in the rural areas as the investment are minimal and with a ready market for the produce. गाँव में किसान जो रह रहे हैं उनकी महिलाएं हैं और बहुत सारे यंग पीपल है जिनके पास करने को कुछ नहीं, वो गाँव का वेस्ट लेकर ही या जो घरों से निकलने वाला वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उनको लेकर ही केवल उन्हें अर्थवर्म चाहिए, वो कहीं से भी केवीके से या और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, उसे लेकर के ये काम एक तरह से स्टार्टअप कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में ये सारे बनाकर अच्छी पैकिंग करके वर्मी कंपोस्ट को शहरों में भी सेल कर सकते हैं, अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हम सेफ्टी की बात करें, ये सेफ है, फ्री फ्रॉम टॉक्सिक रेसिड्यूज हैं, कंटामिनेंट्स इनमें नहीं मिलते हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं गुड फॉर हेल्थ है, इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, इनमें ऑयल है. अगर वैसे इट फ्लेवर डिपेंड्स ऑन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये ऐसा है, देखा गया है फूड की एनालिसिस में कि ये प्रोडक्ट्स टेस्ट में दीज आर बेटर देन द क्रॉप प्लांट्स विच वर ग्रोन ऑलरेडी विद द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स. फिर ये मोर न्यूट्रिशियस हैं, क्यों? क्योंकि इसमें लेस टॉक्सिक कंपोनेंट्स है, विटामिन सी है, मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन है ज़्यादा अमाउंट में, और इसीलिए डेवलप कंट्रीज़ इन्हें एनहांस करें ऐसे प्रोडक्ट्स को. अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, सो एपीडा, that is the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authorities are regulating authority for the same. एपीडा हमारे देश में गवर्न करता है कि if we are saying this product is organic, whether it is yes or no, मतलब ये है कि नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका सर्टिफिकेशन होता है. देन फॉर कंज्यूमर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्व्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ एश्योरेंस, 100% होल प्रोडक्ट विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव और सिंथेटिक सब्सटेंसेस. सो इट एश्योर्स क्वालिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉड. इसमें क्या एंटीबायोटिक, फूड एडिटिव, पेस्टिसाइड्स नहीं होगा. फार्मलैंड जहाँ ये हो रहा है ये भी चेक किया जाता है. इट इज़ फ्री फ्रॉम केमिकल्स फ्रॉम द लास्ट पास्ट मेनी ईयर्स, कीपिंग डिटेल्ड रिटन प्रोडक्शन एंड सेल्स रिकॉर्ड. देन स्ट्रिक्ट फिजिकल सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. देन अंडरगोइंग पीरियोडिक ऑन साइट इंस्पेक्शन. सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत लंबा है. अगर हमारा कोई किसान या हम अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक कह रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल है,
उसमें एप्लीकेशन मेड एक बनाई जाती है, सर्टिफिकेशन एजेंसी को दी जाती है, फिर स्क्रीनिंग होती है, उसमें कुछ कॉस्ट भी लगती है इसे अप्लाई करने में, कुछ लेबोरेटरी चार्जेस होते हैं। जब वो एक्सेप्टेंस करते हैं उसके बाद एक विजिट होता है, सर्टिफिकेशन एजेंसी रेजेस एन इनवॉइस एंड आस्क द प्रोड्यूसर टू रिलीज 50% ऑफ द सर्टिफिकेशन कॉस्ट इन एडवांस। फी पे करते हैं ग्रोअर। उसके बाद इंस्पेक्शन का एक शेड्यूल होता है, बनाया जाता है, उन्हें एक डेट दी जाती है। कभी कभी सडन विजिट होती है, उनके फील्ड के सैंपल्स कलेक्ट कर लेते हैं कि सही में ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक हैं, सेफ हैं, कि इनमें कोई पेस्टिसाइडल रेसिड्यू तो नहीं है। फिर फाइनल पेमेंट करा जाता है, सर्टिफिकेशन इज ग्रांटेड। जब ये सब हो जाता है उसके बाद प्रोड्यूसर में रिलीज द स्टॉक फॉर द सेल विद सर्टिफिकेशन मार्क। फिर उन्हें एक की ऑर्गेनिक लोगो दे दिया जाता है, जैसे 100% ऑर्गेनिक। हम बहुत सारे आजकल टी प्रोडक्ट्स पे, इवन सोप पे यूज़ करने वाले डेली प्रोडक्ट में देखते हैं कि ऑर्गेनिक हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। हमारे मार्केट्स में भी ये बहुत आराम से प्रोडक्ट देखे जा सकते हैं और लोग इसी को ज़्यादा लेना चाहते हैं। इनकी अलग शेल्फ होती है कि दीज प्रोडक्ट्स आर ऑर्गेनिक। अब सबसे ज़रूरी ये है अवेयरनेस प्रोग्राम on organic farming. Awareness program should be introduced especially in both in cities and village areas to educate the people about the organic farming. और मीडिया रिसोर्सेज कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कृषि इज़ अ सेफ टाइप ऑफ प्रोडक्शन। इसमें कोई कंटामिनेंट्स नहीं है, कोई पेस्टिसाइडल रेसिड्यू नहीं है, और ऐसी फील्ड जहाँ पे ग्रोअर इसे उगा रहे हैं, प्रोड्यूसर, तो उन्हें भी एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है कि हाँ उनके प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सेफ हैं और किसी भी तरह फूड चेन में आगे कोई किसी तरह के पोल्यूशन होने की संभावना नहीं है। इसकी भी अपना पूरा प्रोसेस है। और हमारे फार्मर्स में जहाँ ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक स्टार्टअप कर सकते हैं हमारे यूथ, जो कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इसमें लागत कुछ भी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और वो अपने खेतों को भी बचा सकते हैं लॉस से, फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, और ये शहरों में भी सप्लाई कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट्स भी और फर्टिलाइजर भी। तो इस तरह से ये बहुत ही उपयोगी है, और दिस इज नेसेसरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। On that note, I would like to thank ma'am for this very enriching lecture, and I would like to thank you dear friends for watching our show. Stay tuned and keep watching. Thank you.